دوستو پرانے وقتوں میں ملک روم پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا انصاف پسند، نیک دل اور بہادر انسان تھا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام فیروزہ تھا۔ شہزادی فیروزہ بڑی ذہین اور خوبصورت ترین عورت تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ دوستو شہزادی فیروزہ کے محل میں ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں دور دور سے نایاب پودے لا کر اگائے جاتے تھے۔ شہزادی ہر شام کو اپنی کنیزاؤں کے ساتھ باغ کی سیر کرتی اور رنگ برنگی تتلیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ ایک شام شادی حسب معمول اپنے باغ میں کھیل رہی تھی اور تتلیاں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ تتلیاں کبھی اس پھول پر جا بیٹھتی تو کبھی اس پھول پر۔ اسی وقت اتفاق سے ملک کوکاف کے جادوگر کا بیٹا زکوٹا جن اپنے تخت پر بیٹھا آسمان کی سیر کر رہا تھا۔ اس کا تخت ایک بہت بڑے سانپ کی شکل کا تھا۔ 4 خوفناک دیو اس تخت کو اٹھائے ہوئے تھے۔ زکوٹا جن کا تخت بادلوں کے اوپر اڑ رہا تھا۔ زکوٹا جن نے ایک طلسمی اینک بھی لگا رکھی تھی جس کی وجہ سے اسے ہر چیز بالکل واضح نظر آ رہی تھی۔ زکوٹا جن کی نظر جب شہزادی فیروزہ پر پڑی تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے اسی وقت اپنے غلام دیووں کو یہ حکم دیا کہ اس باغ میں تخت اتار دیا جائے۔ دوستو تخت نیچے آیا تو کنیزائیں شور مچاتی ہوئی بھاگ گئیں۔ شہزادی فیروزہ تو گش کھا کر وہیں گر پڑی۔ زکوٹا جن نے اسے اٹھا کر اپنے تخت پر ڈالا اور بولا، میں اس خوبصورت لڑکی کو کوکاف کی ملکہ بناؤں گا۔ ہا 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 ہا، چلو اب واپس کوکاف چلے۔ دوستی سنتے ہی اس کے غلام جنوں نے تخت کو اوپر اٹھایا اور کوکاف کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر کنیزائیں دہائی دیتی روتی پیٹتی ملکہ اور بادشاہ کے پاس پہنچی۔ ملکہ یہ سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بادشاہ گھبراہٹ میں ننگے پاؤں باغ کی طرف بھاگا، مگر اب وہاں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ شہزادی فیروزہ کو تو زکوٹا جن اٹھا کر لے گیا تھا۔ پوری سلطنت میں کوہرام مچ گیا تھا۔ ہر کوئی اداس اور غمگین تھا۔ دوستو بادشاہ نے شاہی نجومی اور وزیر اعظم سے مشورے کے بعد اعلان کیا کہ جو بھی آدمی شہزادی فیروزہ کو کوکاف کے جن کی قید سے آزاد کرائے گا وہی تخت و تاج کا وارث ہوگا۔ دوستو اس اعلان کو سنتے ہی بڑے من چلے شہزادے اور اس ریاست کے نوجوان اپنے گھروں سے نکل پڑے، مگر کسی کو بھی کوکاف کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ ادھر ادھر بھٹک کر وہ واپس ناکام لوٹ آئے۔ دوستو ملک روم میں ہی ایک غریب نوجوان فرحان بھی رہتا تھا۔ فرحان کہنے لگا، شاید خدا میری مدد کرے، میں شہزادی کو جن کی قید سے چھڑا کر لاؤں گا۔ یہ سوچ کر فرحان نے سامان سفر باندھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستو دوپہر کے وقت فرحان ایک جنگل میں پہنچا اور ایک گھنے درخت کے نیچے لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ چوں چوں کی درد بھری آواز نے اسے جگا دیا۔ اس نے جب آنکھ کھولی اور ادھر ادھر دیکھا تو درخت کی شاخ پر اسے ایک چڑیا بیٹھی نظر آئی۔ اس چڑیا کے گرد ایک خطرناک کالا سانپ لپٹا ہوا تھا۔ وہ اسے ڈسنا ہی چاہتا تھا کہ فرحان کو چڑیا پر بڑا رحم آیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ چڑیا کو آخر کیسے بچایا جائے۔ جتنی دیر میں فرحان درخت پر چڑھتا سانپ نے چڑیا کو ڈس لینا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے فرحان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے جلدی سے گھوڑے کی دہن سے لٹکتی ڈال اتاری۔ ڈال شیشے کی طرح چمکدار تھی۔ اس نے ڈال کو زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کا رخ درخت پر بیٹھے سانپ کی طرف ہو گیا۔ کالے سانپ نے جب چمکتی ہوئی چیز میں اپنا سایہ دیکھا تو سمجھا کہ کوئی اور سانپ آ گیا ہے۔ وہ بڑے غضبناک انداز میں پھن پھیلا کر پھنکارتا ہوا فرحان کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا۔ فرحان نے کمان میں تیر جوڑا اور اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا۔ دوستو تیر سیدھا سانپ کے پھن میں لگا اور سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس طرح چڑیا کی جان بچ گئی اور وہ پھر سے اڑ کر فرحان کے سامنے آ بیٹھی۔ مگر یہ کیا،
फरहान के सामने तो एक हसीन परी मुस्कुरा रही थी। परी ने कहा, ए आदमजाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं परियों की मलका की खास कनीज हूँ। आज चिड़िया बनकर मैं घूमने निकली थी कि सांप के हत्थे चढ़ गई। अगर तुम ना आते तो उसने मुझे मार ही डालना था। दोस्तों, फरहान ने हंसकर कहा, ए परीजाद, ये हर इंसान का फर्ज है कि वो जानवरों पर रहम करे और उनकी मदद करे। दोस्तों, परी खुश होकर बोली, तुम बड़े अच्छे इंसान मालूम होते हो, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती। दोस्तों, फरहान कहने लगा, मैं रोम की शहजादी फिरोजा को जिनकी कैद से आजाद कराने कोकाफ जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे कोकाफ का रास्ता बता दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों, परी ये सुनते ही गहरी सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी, ये तुमने बड़ा मुश्किल काम अपने सर ले लिया है, लेकिन अच्छे लोगों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। ये लो, ये आम रख लो और इस जंगल के जनूबी हिस्से में एक पुराना बरगद का दरख्त है, वहाँ पहुंचकर इस आम को फाड़ देना। और उस दरख्त के नीचे बोनों की बस्ती है, वो आम खाने के बड़े शौकीन हैं। वो तुमसे आम मांगने आएंगे, मगर तुम हरगिज न देना और कहना, अगर बोना बादशाह मेरे साथ कोकाफ तक चले तो मैं ये आम दूंगा। आजकल आमों का मौसम भी है और मुझे यकीन है कि बोना बादशाह तुम्हारी बात जरूर मान लेगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है ये बोना बादशाह ही बताएगा। दोस्तों, फरहान ने परी का शुक्रिया अदा किया तो उसने अपना एक पर तोड़कर फरहान को दे दिया और कहा, जब भी तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो इसको अपने बालों में लगाना, मैं तुम्हारी मदद को पहुंच जाऊंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। ये कहकर परी चली गई तो फरहान उठा और घोड़े पर बैठकर पुराने बरगद के दरख्त की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिदायत के मुताबिक जेब में से आम निकाला और उसे चीरा तो आम की खुशबू हर तरफ फैल गई। ये खुशबू बोनों की बस्ती में भी पहुंच गई। सारे बोने बेकरार हो गए और बोने बादशाह के हमरा बाहर निकल आए। बोने बादशाह ने ललचाते हुए नजरों से आम की तरफ देखते हुए कहा, ए आदमजाद, तुम कहां से ये आम लाए हो? हमें भी खाने के लिए दो। दोस्तों, फरहान गुस्से से बोला, चलो भागो यहाँ से, मैं तुम्हें आम का छिलका भी नहीं दूंगा। हाँ, मगर मेरी एक शर्त है, अगर तुम मान लो तो मैं तुम्हें सारा आम दे सकता हूँ। बोने बादशाह ने जल्दी से कहा, अपनी शर्त बताओ। तो फरहान बोला, तुम्हें मेरे साथ कोकाफ तक जाना होगा। बोने ने जवाब दिया, मुझे तो कोकाफ का रास्ता भी नहीं मालूम। हाँ, यहाँ से 4 कोस दूर एक खूनख्वार जादूगरनी रहती है, उसे पता है, मगर वो तो इंसानों का खून पीती है और गोश्त भून कर खा जाती है और हड्डियाँ तक भी चबा जाती है। लेकिन एक बात है, वो मारने से पहले हर इंसान से 3 सवाल पूछती है और जो भी सही जवाब दे दे वो उसे जाने देती है। मगर आज तक कोई भी इंसान उसके सवालों के सही जवाब नहीं दे सका। सिर्फ मैं ही उन सवालों के सही जवाब जानता हूँ। फिर तो तुम्हें मेरे साथ जरूर जाना होगा, वरना तुम्हें आम नहीं मिलेगा। दोस्तों, बोना बादशाह मान गया और फरहान ने आम बोनों के हवाले कर दिया। सारी बस्ती उस पर टूट पड़ी और उसे चट कर गई। अब फरहान ने बोने बादशाह को, जो साइज में इंसानी उंगली के बराबर था, उठाकर अपनी जेब में डाल लिया और आगे चल पड़ा। जब वो जादूगरनी के इलाके में पहुँचे तो जादूगरनी फरहान को देखकर खुश हो गई और शैतानी लहजे में बोली, आज खूब तगड़ा शिकार हाथ आया है। ऐ इंसान, मैं तुम्हें पानी में उबाल कर तुम्हारी यखनी पी जाऊंगी। दोस्तों, फरहान ये सुनकर एकदम से कांप उठा। जादूगरनी की शक्ल बड़ी भयानक थी। उसकी आंखें लाल और गंदे दांत थे। काले स्याह रंग का मेंढक उसकी गोद में बैठा हुआ था, जिस पर हाथ फेरते हुए जादूगरनी उसे चूहे खिला रही थी। जादूगरनी की बात सुनकर फरहान बोला, है जादूगरनी, तुमने तो ऐलान कर रखा है, जो तुम्हारे 3 सवालों के जवाब देगा उसे तुम छोड़ देती हो। जादूगरनी ने ये सुनकर चीख मारी और फर्श से उछलकर चिल्लाई, तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? हाँ, आज तक कोई इंसान मेरे सवालों के सही जवाब नहीं दे सका। हा 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 हा। दोस्तों, जादूगरनी का कहका बड़ा भयानक था। उसका महल लरजने लगा। मेंढक उसकी गोद से उछलकर नीचे जा पड़े।
जादूगरनी ने पहला सवाल किया कि बताओ 10 मन वजनी पत्थर को किस तरह फूंक मार के उड़ाया जा सकता है। फरहान ने कान खुजाने के बहाने सर जेब की तरफ झुकाया तो बोना बादशाह उसके कान में बोला, जनाब पत्थर को पीस कर पाउडर बनाकर फूंकों में अड़ाया जा सकता है। फरहान ने यही जवाब दिया तो जादूगरनी उछलकर चिंगारी, लो अब दूसरे सवाल का सही जवाब दो। वो बोली, वो कौन सी दौलत है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। फरहान ने फिर से अपना सर जेब की तरफ झुकाया तो बोने बादशाह ने कहा, जनाब वो दौलत इल्म है जिसे चुराना नामुमकिन है। दूसरे सवाल का भी दुरुस्त जवाब पाकर जादूगरनी गुस्से से लाल पीली हो गई। उसे नजर आ रहा था कि ये शिकार मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि अगर फरहान तीसरे सवाल का भी सही जवाब दे देता तो जादूगरनी को उसे छोड़ना पड़ता। उसने कहा, ऐ इंसान, मेरा तीसरा सवाल ये है कि वो कौन सा जुर्म है जिसे करते हुए अगर इंसान पकड़ा जाए तो सजा मिलती है, लेकिन अगर कर ले तो सजा नहीं दी जाती। फरहान ये सुनकर चकरा गया, मगर बोने बादशाह ने उसे बताया तो फरहान ने कहा, वो जुर्म खुदकुशी है। जादूगरनी ने जोर से दोहत्तर मारा और चीखी, अफसोस आज एक इंसान ने मेरे सवालों के सही जवाब दे दिए हैं, मैं इसे भून कर खा नहीं सकती। चल जा, मैं तुझे छोड़ती हूँ, तू आजाद है। दोस्तों, फरहान ने कहा, ऐ जादूगरनी, एक मेहरबानी कर दे, मुझे कोकाफ जाने का रास्ता बता दे। मैं अपने मुल्क की शहजादी को जिनकी कैद से आजाद कराना चाहता हूँ। तो जादूगरनी बोली, मैं तुम्हारी जहानत से बड़ी खुश हुई हूँ। ये गेंद जमीन पर फेंक दे और उसके पीछे पीछे चलता जा। ये गेंद तुझे खून के दरिया के किनारे तक पहुंचा देगी। उस दरिया के पार कोकाफ की हदूद शुरू हो जाती है। दरिया के किनारे एक चुड़ैल रहती है, वही दरिया की मुहाफिज है। अगर तुम उसे मारने में कामयाब हो गए तो दरिया पर खुद ब खुद ही एक पुल बन जाएगा, जिस पर से गुजर कर तुम दूसरी तरफ जा सकोगे। खबरदार, दरिया के खून में तैरने की कोशिश न करना, वरना पत्थर के बन जाओगे। दोस्तों, फरहान ने गेंद जमीन पर डाली तो गेंद खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी और फरहान उसके पीछे पीछे चलने लगा। बोना बादशाह उसकी जेब में था और मजे मजे से ये सारी बातें सुन रहा था। अब हम शहजादी फिरोजा की खबर लेते हैं कि वो किस हाल में है। ज़कूटा जिन ने उसे चांदी के एक बड़े पिंजरे में कैद कर दिया था और उसे मजबूर करता था कि वो उसे शादी कर ले। उस वक्त भी ज़कूटा जिन उसे कह रहा था, ऐ शहजादी, मेरी बात मान ले, यहाँ तेरी मदद को कोई नहीं आएगा। शहजादी फिरोजा ये सुनकर रोने लगी तो ज़कूटा जिन ने जब उसे रोता देखा तो गुस्से से दौड़ा कि उसका महल कांप उठा। उसने कहा, ऐ नादान शहजादी, तुझे मेरी बात मानना पड़ेगी, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे 3 दिन की मोहलत देता हूँ, अच्छी तरह सोच ले, या तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जा या मरने के लिए तैयार हो जा। दोस्तों, ज़कूटा जिन ये कहकर गुस्से से फनकारता हुआ वहाँ से चला गया। शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। उसे अपने माँ बाप बड़े याद आ रहे थे। उसने सुन रखा था, जो भी अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं उनका कहना मानते हैं, अल्लाह मियाँ उनकी मदद जरूर फरमाते हैं। शहजादी को उम्मीद थी कि खुदा भी उसकी मदद करेगा। इधर फरहान दरिया तक जा पहुंचा। उसने देखा कि दरिया में पानी की बजाय खून बह रहा है और उस दरिया के किनारे एक काले रंग का पुराना महल था, जिसमें वो खूनख्वार चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल ने इंसान की बू सूंघ ली थी। आदम भो के नारे लगाती हुई वो भागती चली आ रही थी। उस चुड़ैल के 4 हाथ और 4 आंखें थी। गले में सांपों की माला थी। लंबी सुर्ख जुबान मुंह से बाहर लटक रही थी। उसके दांत चमक रहे थे। फरहान और बोना बादशाह एक दरख्त के पीछे छुपे बैठे थे। डरौनी शक्ल वाली चुड़ैल चीखें मारती इधर उधर भागी फिर रही थी। दरख्त के करीब आकर उसने मकरू कहका लगाया। इतने जोर से दरख्त पर हाथ मारा कि दरख्त टूटकर जा गिरा। फरहान उसके नीचे आते आते बचा। उसने फौरन अपनी तलवार निकाल ली और कहने लगा, ऐ खूनख्वार चुड़ैल, मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे तलवार से काट डालूंगा। चुड़ैल ये सुनकर हंसने लगी। उसकी खौफनाक हंसी से पूरे माहौल में भूचाल सा आ गया। दरख्तों पर बैठे परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। तो जादूगरनी बोली, तेरी ये मजाल, मैं तुझे मसल कर रख दूंगी। तेरा खून दरिया में बहाकर तेरा गोश्त खा जाऊंगी।
फरहान ने तलवार से वार किया तो तलवार चुड़ैल के बाजू पर पड़ी, मगर उस पर कोई असर न हुआ, उसे जख्म तक नहीं आया। अब तो फरहान के हाथ पैर फूल गए। बोना बादशाह जेब में कूदता हुआ बोला, हाय मारे गए। चुड़ैल हाथ फैलाकर फरहान की तरफ बढ़ी। उस वक्त फरहान ने जेब से परी का दिया हुआ पर निकाल कर अपने बालों में लगाया। बस फिर क्या था, एक धमाके के साथ उसके हाथ में एक सोने की कमान थी जिस पर फलादी तीर चढ़ा हुआ था, और परी ने ये तीर चलाया तो तीर सीधा चुड़ैल के सीने में लगा। उसने जोरदार चीख मारी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और वो चीखते हुए मर गई। ये चुड़ैल सैकड़ों इंसानों को हड़प कर चुकी थी और आज खुद मारी गई। फरहान ने कहा, मैं किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझे और बोने बादशाह को मौत से बचाया है। परी ने इसका जवाब दिया कि जो कोई नेकी करता है उसका सिला इन्हें जरूर मिलता है। तुमने मेरी जान बचाई थी तो आज मैं तुम्हारे काम आ गई। और खुदा हाफिज कहकर परी वहाँ से चली गई। खून के दरिया पर अब एक पुल बन चुका था। फरहान उस पुल से गुजरकर कोकाफ में दाखिल हो गया। कोकाफ की सरजमीन पर कदम रखना ही था, न जाने किधर से आवाजें आने लगी, ए नौजवान भाग जाओ वरना मारे जाओगे। ये जिनों की बस्ती है, यहाँ इंसानों का क्या काम, भाग जा भाग जा। दोस्तों, पहले तो फरहान ये आवाजें सुनकर घबरा गया, फिर वो हिम्मत करके आगे बढ़ा और उसने तलवार अपने दोनों हाथों में थाम रखी थी। कुछ देर तक तो आवाजें आती रहीं, फिर बंद हो गईं। उसी वक्त सामने वाले पहाड़ से एक बहुत बड़ा परिंदा नमूदार हुआ। ये कोकाफ का खूनी परिंदा था जिसका नाम उड़न हाथी था। इसका जिस्म 3 हाथियों के बराबर था, रंग स्याह था और 4 टांगे थी। इस नई आफत को देखकर फरहान ने तलवार संभाल ली। उड़न हाथी बड़ी तेजी के साथ उसके सर पर आ पहुंचा और बड़ी फुर्ती से उसने फरहान को निगल लिया। फरहान को लगा जैसे वो किसी गीली सड़क पर फिसल रहा हो। वो फिसलता हुआ एक अंधेरे कमरे में जा गिरा। ये उड़न हाथी का मैदा था। फरहान मैदे में खड़ा हो गया। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, मगर फिर ये भी मुश्किल थी कि उड़न हाथी ने अपनी चोंच खोल दी थी। रोशनी और हवा अंदर आने लगी। बोने बादशाह ने कहा, बाप रे, ये खौफनाक परिंदा मेरे बाप ने नहीं बल्कि मेरे परदादा ने भी नहीं देखा होगा। फरहान ने कहा, अब इस जगह से कैसे निकलेंगे? जब वो कुछ देर वहाँ रहे तो परिंदे के मैदे के इंतजाम में हजम हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि तलवार के जरिए सुराख करके हमें बाहर निकलना चाहिए। फरहान ने खुदा का नाम लिया और तलवार से भरपूर वार किया। उड़न हाथी का गोश्त इस तरह कटा जैसे साबन कटता है। वो चीखें मारता हुआ अपनी टांगों पर घूमने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके मैदे में गोया जलजला आ गया हो। और फरहान उड़न हाथी के पेट में कलाबाजियां खाने लगा, मगर संभल संभल कर वो तलवार चलाता रहा। उड़न हाथी को बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसने फरहान को बाहर उगल दिया। फरहान धड़म से जमीन पर गिर पड़ा और वो उठा। फिर उड़न हाथी ने कराहते हुए इंसानी आवाज में कहा, ए आदमजाद, मुझे मारना नहीं, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। उड़न हाथी को बोलते देखकर फरहान हैरान रह गया। कोकाफ बड़ी अजीब दुनिया है। वहाँ ऐसी मखलूक पाई जाती है कि अकल भी नहीं मान सकती। फरहान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें जिनों के खिलाफ मेरी मदद करना होगी। हमारे मुल्क की शहजादी को जिन उठा कर ले आए हैं। उड़न हाथी ने कहा, मुझे ये मंजूर है, मैं यहाँ के उड़न हाथियों का सरदार हूँ। हमारी तादाद 100 के करीब है। जब भी तुम मगरब की तरफ मुंह करके मुझे आवाज दोगे, मैं साथियों समेत तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। दोस्तों, फरहान आगे बढ़ गया। एक दिन और एक रात सफर के बाद वो जकूटा जिन के महल के करीब पहुंच गया, जहां शहजादी कैद थी। जकूटा जिन को जब ये खबर मिली कि एक इंसान शहजादी को रहा कराने आया है, तो वो कहके लगाने लगा और अपने महल की छत पर आकर बोला, ए आदमजाद, तुम हमसे टक्कर लेने आए हो? अपना कद तो देखो और अपनी ताकत देखो। जा यहाँ से चला जा, मैं तेरी जान बख्शी करता हूँ। फरहान ने बड़ी जरूरत से कहा, ओ बदबख्त जिन, गरूर न कर, कभी कभी चूंटी भी हाथी को मार डालती है। अपनी खैरी चाहता है तो शहजादी को आजाद कर दे। दोस्तों, जकूटा जिन ने गुस्से में फनकारते हुए अपने गुलाम दियों को हमला करने का हुक्म दिया। फरहान ने उसी वक्त मगरब की तरफ मुंह करके पूरी ताकत से कहा,
اے اڑن ہاتھیوں، میری مدد کے لیے فوراً آؤ۔ دوستو، اڑن ہاتھیوں کے جتھے آسمان پر نمودار ہوئے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اڑن ہاتھیوں نے اپنی چونچوں میں کئی من کے پتھر دبائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اڑتے اڑتے یہ پتھر جنوں پر پھینکنے شروع کر دیے۔ پتھر لگنے سے جنوں کی بوٹی بوٹی ہو گئی اور جن تڑپتے تڑپتے مر گئے۔ جو بچ گئے تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ میدان جنوں کی لاشوں سے بھر گیا۔ فرحان محل میں گھس گیا۔ زکوٹا جن اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔ زکوٹا جن بڑا ماہر تلوار باز تھا۔ فرحان نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، مگر زکوٹا جن تو ہار ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جب بونے بادشاہ نے دیکھا تو فرحان کی جیب سے جادوگنی والا گیند نکال کر پورے زور سے زکوٹا کے منہ پر مارا۔ زکوٹا جن کے منہ پر لگتے ہی وہ گیند پھٹ گئی، اس سے کالا دھواں نکلا۔ زکوٹا جن بے ہوش ہو گیا۔ فرحان نے لپک کر اس کا سر کاٹ دیا۔ زکوٹا جن تڑپتا ہوا مر گیا۔ شہزادی فیروزہ کو چاندی کے پنجرے سے نکال کر فرحان اپنے ساتھ واپس لے گیا اور منزلیں طے کرتا ہوا ملک روم پہنچ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے جب اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ فرحان اور شہزادی فیروزہ کی شادی کرا دی گئی۔ بادشاہ نے تخت و تاج بھی فرحان کے حوالے کر دیا۔ فرحان نے بڑے سال تک وہاں خوب عیش اور موج سے حکومت کی۔